Hello everyone. Today I'm going to teach you child psychology. These are the contents in which I'm going to teach you child psychology. So, coming to what is psychology? Actually, psychology is a Greek word which is psych plus logy. Psych means soul in Greek, and logy means study of subject. So, psychology is a science that deals with the human nature, function, and phenomena of a soul in the main. So, coming to the child psychology, as the name suggests, psychology is psychology of the children. It is a science that deals with the study of child minds and how it functions. It also deals with the mental power or interaction between the conscious and subconscious element of the child. So, what is the conscious and subconscious element? We will discuss in further slides. So, basically, mm, for now, we should understand psychology, which deals with the child, is child psychology. So, what is the aim of a pediatric dentist or any dentist to study child psychology? First is to understand the child better and therefore deal with him more effectively and efficiently in the dental operatory. If we know his moods, or if we know that he has nap time or sleeping time in afternoon, so we should not keep his appointment at that time. We should keep his or her appointment early morning. We should understand the child thought process, and we can talk him about his interests, so that there is some connection between the dentist and this child, so we can do his or her treatment more effectively and efficiently in the time. Second is better timing and interaction with the treatment plan. So we can change our treatment plan according to him and plan our treatment according to the child needs. Third is to identify the problem of psychosomatic origins. If we know what is the problem of his behavior, why he's behaving in certain way, we can modulate it or model that behavior for our better treatment plan. Next is to train the child so that he understands his oral hygiene better. We can show him videos or modeling so that he understands why oral health is important for him, and he brushes his teeth himself or herself after certain age. And last is help the modify child's development process. So these are the basic main needs or aim why we are focusing on child psychology. Now coming to pediatric treatment triangle. So first, this triangle was given by GZ Wright in 1975. This triangle tells us that the child is the main concern or treatment of dentist and family. There is a three-way communication. There should be a three-way communication between the child, family, and dental persons. As these, it is a dynamic relationship, and these arrows shows the communication between all of these three. In 2014, McDonald modified it by adding society because society has certain expectations, and society can change the dynamics between the parents and the child. Society, we have to do treatment as a dentist which is accepted by the society, so that the child and family accepts the treatment. So this is the pediatric treatment triangle. So in first 1975, Gigi Wright has given it and has told that the at apex the child is there, and at base family and dental person are there, and it shows a dynamic relationship, and there should be a connection between all of these three, because child is not adult, he cannot take his decision his or by herself. So family is important. But in 2014, McDonald said no, society is also important, because we have to do treatment, or child or family will accept the treatment which is accepted by the society. Okay, as peers, friends, family, it is also important. Okay, now coming to pediatric dentistry treatment model. Vivek Petor in 2012 had proposed his new model, in which he has added pediatrician in society, pediatric dentists, and parents, because he says that it is a four-way connection. Pediatricians should be also involved in the treatment and development and overall growth, for prevention, for behavior management, to understand child psychology, and to manage his risk for oral cavity. So there are various theories to understand the stages of child psychology. These all theories are hypotheses over centuries to understand child development. However, there is no such theory which has
given us the best metrics. Every theory has its own advantages and disadvantages, which will be discussed in details. Broadly, theories have been classified into two things: psychodynamic theory and behavior learning theory. In psychodynamic theory, we have three sub-theories, which is psychosocial theory or psychoanalytic theory, which was given by Sigmund Freud in 1905. Then is psychosocial theory or model of personality theory by Erikson in 1963. Then is cognitive theory of Jean Piaget given in the year 1952. Then behavior learning theory in which we have classical conditioning by Ivan Pavlov, then operant conditioning by B.F. Skinner, then hierarchy of needs by Maslow, and social learning theory in Albert by Albert Bandura. These are the some major theories which you should know for your exams or any other paper, because all these uh, theories are important. Okay, so we will go by one and discuss all these theories. So first coming to psychoanalytical theory. So this is given by Sigmund Freud in 1905, and Sigmund Freud is an Australian physician and is the father of modern day psychiatry. He is the father of basically his father of modern psychology, and he has given a psychoanalytical theory. He understand the mind, human mind in this core of classical psychoanalytical theory. ठीक है, he has given he has told that body has two type of neurons. One is phi neurons and then is psi neurons. What does psi neurons do? They are concerned with the conditioning of the emotion, and second is psi neurons. Actually, they are concerned with the storage of the emotion, how emotions are stored in our brain. Basically, he has describe mine into two models, and we will discuss two models in details. First is topographic model, and second is psychic triad. So coming to the first model, which is topographic model, as you can see in this diagram, there is an iceberg, and tip of the iceberg is seen, but the portion below the sea cannot we cannot see the portion below the sea. So 10% iceberg which is seen is our conscious mind, and rest 90% is subconscious and conscious mind, in which conscious mind is 52, uh, pre-conscious mind or subconscious mind is 50 to 60%, and unconscious mind is 30%. So what does this model tell us? This model compared human mind into an iceberg. The small part that has shown above the surface of water represents the conscious experience. That much larger base below the water represents unconscious storehouse of impulse, passion, memories that affects the thought and behavior. Okay, so coming to conscious mind, as I told you, it is a small part. It is the awareness of things at a particular moment, like what we are feeling right now, like our present perceptions, memory, thoughts, fantasies. All of these come under category of conscious mind, the things we are aware of this time. Like you are listening to my lecture, so you're aware that you are listening to this lecture, mind is in this lecture. This is conscious mind. Now coming to conscious mind, it works closely with conscious mind, and preconscious mind is also called available memory, that anything available which is stored in which is stored in our brain. We are not thinking it right now, but we can go in our memories and remember back easily. Like you want to eat, you are thinking right now you are studying, but someone has told you about some other story. But you can go in your mind and recollect that. That is pre-conscious mind, the memory which is available, but it is not. We are not thinking about it at that in this particular mind, but we can recall it. Then come the unconscious mind, which is a large part below the water level. It's the storehouse of impulse, passion, memories that affects knowledge, our feelings that motivates our decision, and actually powerful influence our past experience. Like it drive us to do some work. Like it is a characteristic of young child who are dedicated to uh, gratification of their desire, like experience pleasure without any delay. Okay, like we do some work, we like painting.
सो इट इज इन आवर अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें पसंद था काम कभी, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है, दिस इज अ ट्रोपोग्राफिक मॉडल बाय फ्रूइड। नाउ ही हैज गिवन वन अदर मॉडल which is psychic triad. So in 1923 he has given triad structure of model. These three structures of id, ego and superego. Ego is pleasure principle which gives instant gratification. Ego, what is ego now? Ego is reality, what is going right now, and superego it follows the rule of the society. I'll discuss all these three one by one. So coming to id, what is id? It is the most primitive part of my personality. It is a basic structure of personality which reserves our instinct at present. Like at present, at birth, an impulse strives for immediate pleasure and gratification, operating under guidance of primary person. Like the ID lacks capability to modify the drive. For example, need to eat in a young child is based of pressure principle. That child wants food irrespective of external circumstance, like कि बाहर कुछ भी हो रहा हो पर उसको पता है उसको खाना चाहिए तो उसको खाना चाहिए. It is ID basically. First, it works on pleasure principle. Then it regulates instinct drives or impulse for gratification and pleasure. Like in this picture, we can see child is having using a pacifier. The pacifier is giving oral gratification to the child and pleasure. So, as I have told you, it is a basic structure of the personality. It is present from the birth, and it is inherited, and it is an unconscious part of our personality. Now, coming to ego. What is ego? Ego is actually works on reality principle. It involves functions like memory, language, creativity. It distinguishes impulse of mind and then things in real world. It is a mediator between it and ego. It is concerned with overall functioning and organization of individual. Like in this example, you can see ego is like for ego. So like it is what he like in the situation he knows he has to study for exams. But superego is there, ego is there, and it is also there. So what does ego say? It is a mediator between id and ego. Like he has to study, but he thinks कि उसको पार्टी भी करनी है पर पढ़ना भी है. वो पूरा टाइम पढ़ तो पाएगा नहीं. तो he makes a timetable, and as we can see in this third part, ego is that he's make the timetable and he will study. ठीक है. So it is वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल. ही मीडिएट्स कि वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, तो उतना ही करेगा वो ये भी नहीं कर रहा कि वो बिल्कुल ही पूरा टाइम पार्टी कर ले और बिल्कुल ना पढ़े, या फिर वो ये भी नहीं कर रहा कि वो बिल्कुल वो पढ़ता रहे. उसको एक रियलिटी प्रिंसिपल पे जीना है, वो कितना कर सकता है. ठीक है, तो वो रियलिस्टिक चीजों पे गोल्स बना रहा है, तो ये होती है उसकी ईगो. देन कम्स द सुपर ईगो. इट वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल कि लोगों ने क्या बोला है वही वही सही है, जो उसको सिखाया गया है अभी तक या पढ़ाया गया है. ठीक है, उसको लगता है वो सही है. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, ये डिसाइड करता है कि क्या गलत है और ये क्या सही है. मतलब इट इज अबाउट कि बिल्कुल ब्लैक है बिल्कुल व्हाइट, ये बीच का कुछ नहीं सोचता है. ये मोरालिटी प्रिंसिपल का काम करता है. और ये डिटरमाइन किस होता है, रेगुलेशन प्लेस्ड ऑन चाइल्ड बाय पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी, अदर्स. जो भी उसको सिखाया गया है, और ये क्या काम नहीं करता, जो सोसाइटी उसको इनहिबिट करती है, करने नहीं देती. ठीक है. इट इज एक्चुअली इंडिविजुअल की कॉन्शियस है कि वो जज करता है कि वो एक्शन उसके लिए सही है या गलत है. ठीक है. तो ये एक सर्टेन वे में उसको करने देता है. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि जैसे कि वो लास्ट वाले में बताया था, तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर चीटिंग करनी है. ठीक है. तो उसको लग रहा है कि मैं चीटिंग नहीं करूंगा, चीटिंग कर लेता हूँ, तो वो उसकी ईड है. ठीक है. पर वो सोच रहा है कि मैं जब चीटिंग करूंगा, जब बिल्कुल कोई देख नहीं रहा और एकदम से एक वर्ड पूछ के वापस कर दूंगा, तो वो रियलिटी में है कि उसको पता फेल हो जाएगा, तो बस इतना सा देख लेता हूँ. वो उसकी ईगो है, पर उसको लगता है नहीं, मैं पूरी चीटिंग करूंगा. ठीक है. पूरा आगे से देख लूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा. ठीक है. तो क्या हो रहा है,
तो सुपर ईगो प्ले में आ रही है और वो कह रही है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जितना आ रहा है उतना ही करो। तो ये सुपर ईगो गई। बिल्कुल जो मोरालिटी प्रिंसिपल्स पे जो हमारी सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, जो हमें पेरेंट्स ने सिखाया है, जो हमें टीचर्स ने सिखाया है, हम उस पर बिल्कुल काम करें, वो हो गए सुपर ईगो। तो ये तीनों कभी ना कभी, ये मतलब ये इकट्ठे ही पार्ट प्ले करती है तीनों चीजें। ठीक है। तो ये होगी इड, ईगो, सुपर ईगो। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस, उसने फिर इसके बाद 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। फर्स्ट इज द ओरल स्टेज, फ्रॉम बर्थ टू 18 months। फिर एनल स्टेज 1.5 to 3 years। फिर यूरेथ्रल स्टेज 3 to 4 years। फिर फैलिक स्टेज 4 to 5 years। फिर लेटेंसी स्टेज 5 years to puberty। एंड genital stage which is after puberty. Now we will discuss all the stages one by one. So coming to the first stage, which is oral stage, which is 0 to 1.5 years। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो उसका एक्सोनॉर्मस जोन है फोकस का, वो माउथ है। और उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किससे मिल रहा है? नर्सिंग से, ईटिंग से, माउथ मूवमेंट से, लाइक सकिंग, बाइटिंग, स्वेलिंग। ठीक है। उसका जो जोन ऑफ प्लेजर है वो माउथ या ओरल कैविटी है। तो क्या होता है, इन्फेंट्स को ना एकदम से सेटिस्फेक्शन मिलती है जब उसको एरिया, जो उसके ओरल एरिया स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि जैसे इन्फेंट है। ठीक है। अब वो इन्फेंट है। ठीक है। वो क्या कहते हैं, ओरल स्टेज को बहुत लेट तक लेके चल रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारी डिस्टरबेंस हो सकती है, थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग। ठीक है। वो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनवी आ सकता है, वो जेलस हो सकता है। ये सारे स्टेजेस तब आते हैं जब ओरल स्टेज उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। तो हमें पता लग गया ओरल स्टेज 0 to 1 years है, और जोन ऑफ प्लेजर माउथ या ओरल कैविटी है। ठीक है। और क्यों है? क्योंकि बच्चों को इससे ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है। पर अगर इसमें डिस्टरबेंसेस आती है, तो हमने पढ़ लिया कि वो क्या कर सकता है, वो थंब सकर बन सकता है, वो नेल बाइटिंग वाला बन सकता है, और एडोलसेंस के बाद वो स्मोकिंग कर सकता है, या ओवर ईटिंग कर सकता है। ठीक है। या फिर उसमें पर्सनैलिटी टेज लाइक एनवी और जेलस भी बहुत ज्यादा ज्यादा आ सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट ये स्टेज हो गई। नाउ सेकेंड स्टेज इज एनल स्टेज। ठीक है। एनल स्टेज क्या है? 1.5 to 3 years के लिए होती है। और इसका जो फोकस ऑफ जोन है वो एनस होता है। ठीक है। इसमें ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज क्या होती है? बाउल मूवमेंट, विद और विदाउट बाउल मूवमेंट, एंड विदाउट होल्डिंग ऑफ सच मूवमेंट्स। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस स्टेज में चाइल्ड जो है वो ट्रेन हो जाता है। ठीक है। उसको प्लेजर मिलता है बाउल और ब्लैडर मूवमेंट से। ठीक है। उसको ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग मिल जाती है। ठीक है। तो इसमें ये मेजर इवेंट होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है। इस इसकी वजह से उसको प्लेजर और उसका जो डिस्प्लेजर है वो इसी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, 2 पर्सनैलिटी ट्रेड आ सकती है बच्चे के अंदर। अगर ये जो एनल स्टेज है, ये क्या कहते हैं, इसमें इसमें दिक्कत आती है, तो डिस्टरबेंसेस होती है। तो या तो उसकी बहुत एंटी रिटेंटिव पर्सनैलिटी बन सकती है, या बहुत एंटी एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी बन सकती है। ठीक है। अब एंटी एक्सप्लोसिव में क्या होता है कि वो स्टिंगीनेस आ सकती है उसमें। ठीक है। कंपल्सिव नीड फॉर ऑर्डर एंड नीटनेस आ सकती है, वो स्टबन होएगा। ठीक है। और दूसरे में क्या हो रहा है, अगर एंटी रिटेंटिव स्टेज है, तो वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज, मेसी, केयरलेस बनेगा। ठीक है। तो ये 2 चीजें हो सकती हैं अगर ये स्टेज प्रॉपरली हमने नहीं हैंडल की। ठीक है। अगर उसको जैसे कि एंटी एनल रिटेंशन पर्सनालिटी क्यों बन रही है, चाइल्ड रिसीव एक्सेसिव प्लेजर एंड पनिशमेंट फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग टॉयलेट ट्रेनिंग। तो क्या हुआ, उस एक्सपीरियंस में उसको एंजाइटी आ रही है। ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो बिल्कुल ही क्लीन, ऑर्डरली एंड इंटॉलरेंस टू नॉट क्लीन बन जाता है। बट क्या हो रहा है, अगर एक्सप्लोसिव पर्सनालिटी बन रही है, ठीक है, तो क्या है कि उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो स्लो भी हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज हो सकता है, केयरलेस हो सकता है। ठीक है। तो ये होगी एनल स्टेज की बात। नाउ कम्स द थर्ड कम्स द यूरेथ्रल एज, विच इज फ्रॉम 3 to 4 years। इसमें एक्सोनोमस जोन क्या होता है, क्योंकि होता क्या है कि ये ट्रांजिशनल स्टेज होता है बिटवीन एनल एंड फेलिक्स। ठीक है। तो इसमें दोनों करेक्टर्स आते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है। इसमें ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटी क्या है, प्लेजर इन यूरिनेशन।
ठीक है, चाइल्ड derives प्लेजर इन यूरिनेशन एज यूरेथ्रल रिटेंशन। ठीक है, ये उसकी ग्रेटिफिकेशन हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर जो बच्चा है उसमें यूरेथ्रल कंट्रोल नहीं हो पा रहा ढंग से, तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव और एम्बिशियस बनता है। ठीक है, ये इसमें आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि यूरेथ्रल फंक्शन में अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है तो वो सैडिस्ट क्वालिटी भी उसमें आ रही है। ठीक है, और बेसिकली ये सारी जो स्टेज है वो अगर जैसे कि ये स्टेज ढंग से नहीं हो पाती है तो फिर वो कॉम्पनसेट करता है फॉर शेम ड्यू टू लॉस ऑफ यूरेथ्रल कंट्रोल। ठीक है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया यूरेथ्रल स्टेज, जिसमें हमने पढ़ लिया कि ये एनल और फेलिक के दोनों के थोड़े करेक्टरिस्टिक्स होता है, और जो ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी है वो यूरिनेशन है इन बच्चों में। फिर है फैलिक स्टेज विच इज बिटवीन 3 to 6 years ऑफ एज। इसमें क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन का या फोकस क्या है, जेनाइटल्स। ठीक है, और एग्रोनोमस जोन भी जेनाइटल्स है। इसमें क्या हो रहा है कि हम इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड की थ्योरी आती है विच इज ओडिपस एंड एडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो यंग बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अटैक्ट होते हैं अपने मदर से, है, और वो अपने फादर को एनिमी कहते हैं। ये ग्रीक माइथोलॉजी से बेस्ड स्टोरी है, इसलिए इसने इस स्टोरी में क्या बोला कि एडिपस स्टोरी से उसने क्या निकाला, एडिपस कॉम्प्लेक्स है। जो बच्चे यंग बॉयज है वो अपने मदर से अटैच्ड है, अपने फादर को एनिमी मान रहे हैं। वेज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में उल्टा हो रहा है, यंग गर्ल्स अपने फादर से ज्यादा कनेक्टेड और अपनी मदर को एनिमी मान रही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अगर ये डिस्टरबेंस इन जोन में हो जाती है तो रिजेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स हो सकता है, होमोसेक्सुअलिटी हो सकती है। ठीक है, फॉर स्पेशली फॉर मेन एंजाइटी, गिल्ट, फीलिंग अबाउट सेक्स, फियर ऑफ कैस्ट्रेशन, या नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो सकती है। और वुमेन के लिए क्या हो सकता है, ज्यादा एनवी, इन्फीरियरिटी हो सकती है उनमें। ठीक है, ये हो गया फेलिक स्टेज 3 to 6 years में। नाउ कम्स लेटेंसी विच इज अबव 6 years। ठीक है, ये प्यूबर्टी में होती है। इसमें क्या होता है कि जो एग्रोनॉमिक जोन है वो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट इसमें इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, उसमें क्या होती है, इस पीरियड में सेक्सुअल फीलिंग्स आती है। ठीक है, जो चाइल्ड को फोकस करने देती है, ठीक, जो चाइल्ड का सब अदर चीजों से फोकस हटा देती है। ठीक है, इसमें उसकी जो मेचुरेशन ऑफ ईगो भी हो जाती है। ठीक है, चाइल्ड सोशलाइज करने में लगता है, स्कूल भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और वो स्कूल जा रहा है तो फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, हॉबीज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर ये डिस्टर्बेंस होती है स्टेज में तो इमेच्योर बिहेवियर निकलता है और डिक्रीज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स होती है। ठीक है, तो ये हो गया लेटेंसी पीरियड। ठीक है, 6 years टू प्यूबर्टी, क्योंकि अब उसके फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, उसके पीयर्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेस कर देती है सेक्सुअल ड्राइव को। ठीक है, और इस टाइम में वो जस्ट होते हैं एनवायरनमेंट जो घर के बाहर भी है, उनकी कल्चर्स भी देख रहे हैं। ठीक है, सेम सेक्स फ्रेंडशिप भी हो रही है। ठीक है, वो स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया स्टेज पे। फिर अगली है जेनाइटल स्टेज विच इज प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। ठीक है, चाइल्ड इसमें क्या है कि इसका भी इकोनॉमिक जोन जेनाइटल्स है। ठीक है, और जो ग्रेटिफिकेशन है वो हेटेरोसेक्सुअल एक्टिविटीज या रिलेशनशिप है। अब चाइल्ड प्यूबर्टी के बाद पहुंच चुका है, तो उसको अपना सेक्सुअल रोल समझ आ चुका है कि वो कौन से सेक्सुअलिटी में है, वो एक मेच्योर पर्सनालिटी बन चुका है। ठीक है, ही और वो अपने ही ब्रिंग्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, वो समझने लगा तो नाउ ही इज अडल्ट एंड ही हैज सम सोशल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अगर ये स्टेज पूरी नहीं हो पाती है तो उसमें डिस्टर्बेंसेस आती है, जैसे लैक ऑफ मेच्योरिटी एंड लैक ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये हो गया जेनाइटल स्टेज। ठीक है, तो अगर हमें एकदम से, अगर हमें शॉर्ट पे करना हो, जो ओरल स्टेज थी उसमें क्या हुआ, उसमें उसमें जोन ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या हुआ, उसमें हो गया ओरल में माउथ। फिर एनल आया, उसमें हो गया एनस। फिर यूरेथ्रल स्टेज आई, उसमें ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी होगी यूरिनेशन। फिर फैलिक में होगी जेनाइटल्स। ठीक है, उसके बाद लेटेंसी आई। ठीक है, उसमें इंटरेक्शन हुआ विद एनवायरमेंट, विद सोसाइटी। ठीक है, एंड स्कूल्स एंड पीयर्स। फिर चिल्ड्रन फिर जेनाइटल एज आई। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद।
ठीक है, उसमें ग्रेटिफिकेशन हो गया हेटेरोसेक्सुअल एक्टिविटीज, ये सबके हो गए कि फिक्स क्या क्या वो थी उनकी एग्रोनॉमिक्स जोन या फिर ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं इस थ्योरी की। सो फर्स्ट मेरिट इज इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे पहला था और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसमें बताया गया है। फिर इसके डीमेरिट्स क्या है कि ये एक्सट्रापोलेशन टू चिल्ड्रन इज नॉट जस्टिफाइड इसमें। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थ्योरी है और इसमें चिल्ड्रन की सेक्सुअलिटी पे ज्यादा फोकस्ड है और बाकी चीजों पे नहीं हुआ, तो ये इसके डीमेरिट्स है। So now coming to the second theory, which is psychosocial theory. It was given by Erik Erikson. ठीक है, in 1963 वो एक डैनिश जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, एरिक एरिक्सन। तो उसने क्या किया, उसने लाइफ को 8 डेवलपमेंट स्टेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ईच स्टेज है वो रिप्रेजेंट करती है एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस को, जिससे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो गई, ये बता तो ही हैज गिवन स्टेजेस व्हिच विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, कि स्टेज में क्या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, चलो फर्स्ट स्टेज से शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जिसमें मिसट्रस्ट और ट्रस्ट है फॉर इन्फेंट्स, देन इज फॉर टॉडलर्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, प्री स्कूल इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, ग्रेड स्कूल injustice versus inferiority, for teenager it is identity versus role confusion, then for young adults it is intimacy versus isolation, then for middle age adult it is generativity versus stagnation, and for older adults it is integrity versus despair. So it is start from infant and goes till older adult. Now we will discuss all these stages one by one. So this is the chart which has comprises all the stage with uh with their description and their strength and माल डेवलपमेंट। तो इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम एक एक करके स्टेज समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी से बर्थ तक 18 मंथ से, विच इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, इन फर्स्ट year of life infants depends on from the parents warmth and affection, therefore they must be able to blindly trust the parents or caregiver for providing these। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है अब, अगर वो पॉजिटिवली आउटकम आ रहा है उसमें, तो क्या हो रहा है कि वो रिस्पॉन्सिव होगा बाय, ठीक है, और कंसिस्टेंट होगा अपने नीड्स के लिए बाय द पेरेंट्स। ठीक है, दे विल डेवलप अ सिक्योर अटैचमेंट विद द पेरेंट्स। ठीक है, और वो इजीली फिर उसका ट्रस्ट कर लेंगे लोगों पे, एनवायरनमेंट पे इन जनरल। बट अगर नेगेटिव आउटकम होगा, उनको ये सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही इनकी केयर गिवर से, तो एक नेगेटिव आउटकम होगा और मिसट्रस्ट डेवलप होगा टुवर्ड्स पीपल, एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स देमसेल्फ ऑल्सो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसकी डेंटल सिग्निफिकेंस क्या है। If the stage identifies the development of separation anxiety in the children, so if necessary to provide a dental treatment early age, ठीक है, parental presence is very important। ठीक है, इस स्टेज में अगर हम पेरेंट्स को अलग करेंगे बच्चों से तो सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाएगी। ठीक है, मेंटल डिप्रिवेशन से क्या होता है, इनएडिक्वेट मेटरनल सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से रिटार्डेशन हो सकती है एज वेल इन फिजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ बोथ। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि मदर्स क्या होती है, केयरिंग होती है। ठीक है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, उसी की वजह से चाइल्ड प्रॉपर डेवलप करता है फॉर हिज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। इफ नीड्स आर फुलफिल्ड, then he developed trust towards the society, and if not, then he develops a mistrust towards people, environment and society। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई। फिर सेकंड स्टेज आती है टोडलर्स की 1 to 2 years, जिसमें होता है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। इसमें क्या हो रहा है, टोडलर्स लर्न टू वॉक,
टॉक, यूज टॉयलेट एंड डू थिंग्स देमसेल्फ। ठीक है, उससे उनका सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, स्टेज में तो इसका पॉजिटिव आउटकम क्या होगा कि जो चाइल्ड होगा, ठीक है, वो इनिशिएट करेगा, ठीक है, रीस्योर करेगा अपनी गलतियों से। ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब वो किसी भी सिचुएशन से कोप कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑटोनॉमी डेवलप होती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। ठीक है, कि क्या करना सही है, क्या गलत है, ठीक है, कब क्या करना है। ठीक है, कि कुछ टाइम में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, वो काम करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट इफ पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव, ठीक है, डिसअप्रूविंग, कि जो भी कर रहा है वो सब गलत कर रहा है बच्चा, तो उसमें शेम की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो उसको एक फ्रीडम नहीं मिल पाती। ठीक है, किसी भी वो काम को करने की, सॉरी, उसको फ्रीडम नहीं मिल पाती। ठीक है, तो और उसको एक फिर क्या होता है, डाउट क्रिएट हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं, ठीक है, वो अब इंडिपेंडेंट हो गया है, पर उसको हर चीज में रोका टोकी मिल रही है। ठीक है, तो उसमें एक शेम और डाउट का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेयर ऑटोनॉमी में क्या हो रहा है कि जब वो कोप कर रहा है, वो अपनी गलती से खुद सीख रहा है, तो उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, तो वो ऑटोनॉमी हो गई। ठीक है, अब इसमें डेंटल एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, व्हेन चाइल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम मदर बट स्टिल विल रिट्रीट टू हर इन थ्रेटिंग सिचुएशन, सो पेरेंटल प्रेजेंस इज एसेंशियल इन डेंटल क्लिनिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पेरेंटल प्रेजेंस रख सकते हैं हम। ठीक है, बट अगर हम थोड़ी देर के लिए बाहर भेजेंगे, बता देंगे सामने खड़े हैं पेरेंट्स, तो भी हमारी सिचुएशन चल जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि जैसे मैंने बताया वो इंडिपेंडेंट है, तो दे वांट टू डू दिस वर्क बाय देमसेल्फ, तो इफ वी गिव देम स्ट्रक्चर और टेल देम कि हम उनकी चॉइस से काम कर रहे हैं, या उनको कुछ सेक्शन पकड़ने के लिए दे दे। ठीक है, तो उनको लगा कि वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये होगी इसकी टॉडलर्स में इसकी डेंटल एप्लीकेशन। ठीक है, now coming to third stage in preschool children 3 to 6 years of age, which is initiate versus guilt। इसमें क्या हो रहा है कि child have found a new power at the stage, they have developed motor skills and became more engaged in social interaction with people around them। They now must learn to achieve a balance between eagerness for more advantages and more responsibilities, and learn to control impulse and child fantasies। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव आउटकम में क्या हो रहा है इनिशिएट में कि अगर पेरेंट्स आर इंकरेजिंग but consistent in discipline, children will learn to accept without guilt that certain things are not allowed. At the same time, we will not feel ashamed using their imaginations and engaging uh, in work। ठीक है, नेगेटिव क्या हो रहा है, if no child may develop a sense of guilt and may come to believe that कि वो सब कुछ गलत कर रहा है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट होना भी गलत है, तो उसमें गिल्ट आ जाती है। ठीक है, अगर वो गोल्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो भी उसमें एक सेंस ऑफ गिल्ट है। ठीक है, जो भी उसको वर्क स्टेज में साइन है, जो भी उसे बताए गए हैं, तो अब इसमें डेंटल सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर मैक्सिमम चिल्ड्रन इज उनकी इस स्टेज में फर्स्ट डेंटल विजिट होती है। सो गोइंग टू डेंटिस्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव एंड न्यू चैलेंजिंग एक्टिविटी और एडवेंचर, जिसको हम एक चाइल्ड की एक न्यू एक्सपीरियंस और उसके सक्सेस की तरह देखना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, सक्सेस इन कोपिंग विद एंजाइटी। ठीक है, डेवलप्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब अगर फर्स्ट विजिट में आया है, तो हमें उसमें खाली एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर करना चाहिए कि हम खाली उसका चेकअप कर लें, कोई नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, और पेरेंटल प्रेजेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट विजिट्स में हम उसका ट्रस्ट गेन कर लिया, तो फिर एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स हो सकती है। तो बेसिकली डेंटल सिग्निफिकेंस इसमें ये है कि तुम उसको कोप करना सिखा रहे सिचुएशन से, कि वो कैसे कोप करे। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। नाउ स्टेज 4 कम्स मिडिल स्कूल चिल्ड्रन 7 to 11 years old, which is industry versus inferiority। ठीक है, as we know school is very important at the stage, children learn to make new things, use tools, acquire skills and work। ठीक है, they have friends। ठीक है, peers आ जाते हैं, जिसको जिसमें उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है। ठीक है, वो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी जा रहा है, कि स्कूल जा रहा है वो।
ठीक है, अगर वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स और पीयर्स को एक्टिविटी कर पा रहे हैं, अगर वो इतनी नहीं कर पाता, ठीक है, या फिर वो लैक करे हैं चीजों में, तो पीयर 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 प्रेशर की वजह से इन्फeriority कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आउटकम देखें तो वो प्लेजर डेवलप कर रहे हैं इन इट इन these activities like being productive or learning new skills. They develop sense of competence कि they can do something. And negative is he has developed a inferiority complex from his peer. ठीक है, ये हो गया इंडस्ट्री वर्सेस इंफeriority में। अब डेंटल सिग्निफिकेंस क्या है कि चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड abstract concept about health. ठीक है, child will cooperate morely in treatment if things this peers group are supportive, like in orthodontic treatment। अगर उसको लग रहा है कि उसके दोस्त ही अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, या उसको नहीं चढ़ा रहे इस चीज के लिए, तो वो ट्रीटमेंट इजीली करवा लेगा। ठीक है, बट अगर स्कूल में उससे उसे लोग चढ़ा रहे हैं कि तुम ये क्यों पहन रहे हो, क्या ब्रेसेस क्यों लगे हैं, तो एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो पीयर का इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड वो तभी एक्सेप्ट करेगा ट्रीटमेंट जब उसके पीयर्स इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे या उसके फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे। देन कम्स द एडोलसेंट स्टेज फ्रॉम 12 to 17 years of age in which there is identity versus role confusion। अब इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज द टाइम जब अडोलेसेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु आई एम। ठीक है, इस एज में पर क्या हो रहा है कि उनकी फिजिकल जो एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज वो ग्रो हो रही है, एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही है, वो करियर के बारे में कुछ सोचेंगे। ठीक है, बेसिकली वो 10th या 12th क्लासेस में होंगे, उन्हें अपने करियर के बारे में सोचना है, उन्हें कौन सा कोर्स लेना है, ये सब वो सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव आउटकम क्या है? इफ adolescent solve this conflict successfully, he will come out of his stage without strong identity and ready plan for the future। ठीक है, बट अगर उसे कंफ्यूजन है, नेगेटिव आउटकम होता है, ठीक है, वो कंफ्यूजन में सिंक होता रहेगा। ठीक है, वो उसको भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ठीक है, तो उसमें रोल कंफ्यूजन वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें डेंटल एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, कि अप्रूवल ऑफ पीयर ग्रुप इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, वो स्टेज पे भी, तो पीयर का जो भी पीयर्स का सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करने में। ठीक है, हाँ, लाइक आई हैव रिटन एनी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुड बी कैरिड आउट इफ चाइल्ड वांट्स इट एंड पेरेंट्स एट द स्टेज पेरेंटल अथॉरिटीज इन बीन रिजेक्टेड। ठीक है, अगर पेरेंट्स एक तरफ मना भी करे, बट अप्रूवल ऑफ पीयर ग्रुप इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि वो उनके ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है। ठीक है, सोसाइटी का पार्ट बनना चाहता है, इसलिए। नाउ कम्स द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस सोसाइटी। So, okay, merits and demerits of the society. First is based on age-wise classification. Hence, individual has to apply it at any development state. Then is simple and comprehensive to understand. Then is expansion of psychoanalytical theory, and it gives us the broader perspective. पर demerit क्या है कि इसमें कोई सिस्टमैटिकेशन नहीं फॉलो कर रहे। ठीक है, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं बता रहा है सोसाइटी, और ये बहुत एक्सट्रीम पर्सनालिटीज पे है, या तो इधर या तो इधर, कोई बीच का पार्ट नहीं बता रहा है ये। ठीक है, इसलिए ये इसका डेमेरिट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरी विच इज कॉग्निटिव थ्योरी बाय जीन पेजेंट इन ईयर 1952। ठीक है, अब कॉग्निटिव थ्योरी क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पे बेस्ड है ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड टू एडोलसेंस। ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करती है और उसके थॉट प्रोसेसेस को, कि हाउ बेस्ड ऑन हाउ द ब्रेन एंड हाउ इट लर्न्स इट प्रोसेस हाउ इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव थ्योरी साइज करती है चाइल्ड्स कॉन्शियस थॉट्स को। ठीक है, तो ये हो गया।
तो every individual is born with capabilities to adjust both physical and socio-cultural environment which he or she lives. So cognitive theory plays an important role in this. So अब इसमें चार टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, व्हाट इज ऑपरेशन, देन व्हाट इज स्कीमा, देन व्हाट इज एसिमिलेशन, then what is accommodation, and what is equilibrium. So what is operation? At an action which child performs mentally and which he has added property of being reversal is operation. अब schema क्या है? ठीक है, it represents a dynamic process of differentiation and recognition of knowledge with resultant evolution of the behavior and cognitive function. ठीक है. तो अब इस फर्स्ट फोटो में आप देख रहे हो कि उसको एक फोर लेग एनिमल मिल रहा है जिसको वो एक एनिमल कह रहा है. ठीक है. अब वो डिफरेंशिएट नहीं करता, उसको ये नॉलेज मिल चुकी है, स्कीमा है उसके लिए. ठीक है. अगर हम एक और एग्जांपल ले, ठीक है, उसको पता लगा एक वर्ड बर्ड, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वो बर्ड कह देगा. ठीक है, ये होगी स्कीमा. फिर आते हैं एसिमिलेशन. इसमें क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट और आइडिया को इंटरप्रेट कर पाएगा, बट वो जो पुराने उसको बताया हुआ है वो उसके उस नॉलेज से ही करेगा. अब सेकंड पिक्चर में उसको एक कप दिख रहा है, पर उसको भी वो एक एनिमल कह रहा है या फिर कैट कह रहा है, जो उसको फर्स्ट पिक्चर में बताया था, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है. तो उसकी सिस्टर उसे बताती है कि ये एक कब है. ठीक है. तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन से वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से वो बता रहा है, वो एसिमिलेशन है. फिर एकोमोडेशन, कि उसको अगर पता लग गया, डिफरेंशिएट पता लग गया, तो वो बता देगा कि अब क्या वो मतलब अपने माइंड से डिफरेंशिएट कर पा रहा है. लाइक इन दिस डायग्राम जो उसकी बहन ने बता दिया कि ये हर फोर लेगेड एनिमल कैट नहीं होती, ये कब है. तो वो अगले उसमें क्या कहते हैं कि उसको डिफरेंशिएट कर पा रहा है कब और एक कैट में. ठीक है. लास्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, अब फ्लाइंग वाला, कि उसने हर फ्लाइंग चीज को बर्ड बोल दिया, पर उसकी सिस्टर ने बता दिया कि नहीं जी, ये तो हेलीकॉप्टर है. तो ही कैन डिफरेंशिएट. तो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, जो भी एक वो क्या कहते हैं, जो न्यू रिजल्ट और नॉलेज उस बच्चे को आ रही है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में उसको फिर डिफरेंशिएट कर पा रहा है. ठीक है. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो अब हम चलते हैं उस पेजेंट, जीन पेजेंट ने हमें फिर 4 स्टेजेस दिए हैं इसकी. सेंसरी मोटर स्टेज फ्रॉम 4 to 2 years, प्री ऑपरेटिव स्टेज 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years, एंड फॉर्मेटिव ऑपरेशन years आफ्टर 12 years. ठीक है. तो वन बाय वन we'll discuss all the stages. First comes the sensory motor sensory motor stage from birth to 2 years of the age. ठीक है. During first 2 years of the life, child develops from newborn infant who is almost totally dependent on reflex activities to an individual who can develop new behavior. ठीक है. During this stage, child develops basic concepts of object, including the idea of object in the environment are permanent, and they do not disappear when child is not looking at them. ठीक है. इसमें इसमें क्या है, simple modes of thoughts are the foundation of language developed during this time. But communication between the child and adult at this stage is extremely limited because of child limited capability to know the language. ठीक है. एंड अब इसमें क्या हो रहा है कि animism play an important role. Like he can innate objects like furniture, wall, door, etc. into रियल लाइफ थिंग्स. ठीक है. जैसे कि वी सी वेरी कॉमन एग्जांपल अराउंड अस कि उसको एक डोर से लग गई है, वो नीचे गिर गया, तो हम बोलते हैं ना कि इसको हम मार देते हैं ठीक है, हम उसको डोर को मार देते हैं, डोर ने आपको मारा, तो वो एनिमिज्म स्टेज में दिखती है हमें. ठीक है. तो इसका डेंटल एप्लीकेशन क्या होगा, चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट एंड कैन बी गिवन टॉयज व्हाइल सिटिंग ऑन डेंटल चेयर इन हिज हैंड्स. ठीक है. ये उसका हो गया जो डेंटल एप्लीकेशन था. ठीक है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रियंस मैंने बता दिया, नोशन दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर इट डिसअपियर्स फ्रॉम इट्स व्यू इज ऑब्जेक्ट प्रियमेंस. देन सिंबॉलिक थॉट्स symbolize object or events and use that symbolize to symbolize its place and animals, कि वो हर एक डेड चीज को भी लाइफ दे देगा.
ठीक है, ये हो गया एनिमिज्म। नाउ प्री ऑपरेटिव स्टेज बिटवीन 2 to 7 years ऑफ एज। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ symbols or word is characteristic feature of this stage. During this period, marked consistency appear in the knowledge of the child. ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि लॉजिकल कैपेबिलिटीज भी आ रही है, पर वो लिमिटेड है अभी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट थिंग है ईगोसेंट्रिज्म। चाइल्ड ओनली सीज हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बियॉन्ड हिज मेंटल कैपेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सेटिसिज्म हो गया। फिर सेंटरेशन क्या हो गया, टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एंड inclusion ऑफ others। वो अगर फोकस कर रहा है तो एक ही चीज पे फोकस कर रहा है। देन irreversibility, inability to reverse the direction of the sequence of the image to starting point. Like if we have told him that 2 plus 2 is 4, but he cannot tell right now what is 4 minus 2। ठीक है, देन इज लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, उसकी एबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा भी समझने के लिए। इसमें एक बहुत क्लासिक एग्जांपल आता है कि एक बच्चे के सामने दो ग्लास बीकर्स है। ठीक है, अब उसको वो दोनों इक्वल लग रहे हैं। ठीक है, बट हमने क्या किया, अब एक लंबा जार लिया, उसी पानी को उस लंबे जार में डाल दिया, पर वो पतला था। तो अब उसने क्या बोला कि जो लंबा वाला जार है, पतले वाला, उसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है टू आइडेंटिफाई कि अभी उसकी लॉजिक रीजनिंग इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका डेंटल सिग्निफिकेंस का है, चाइल्ड विल हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग दैट ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग प्रिवेंट्स टूथ डिके, रादर ही विल अंडरस्टैंड कि ब्रशिंग से क्या हो रहा है, उसके टीथ स्मूथ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, और एक जो टूथपेस्ट है वो उसके मुंह को अच्छा बना रही है। ठीक है, उसका टेस्ट भी अच्छा है। ये इसका डेंटल एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, उसको उसको ये नहीं पता कि अगर वो ब्रश नहीं करेगा, ठीक है, तो डिकी हो जाएगा। बट अगर हम उसको इजी लैंग्वेज में बताएं कि अगर वो ब्रश करेगा तो उसके दांत बहुत अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो वो ब्रश करना शुरू कर देगा। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हिज नॉलेज, वी हैव नोटेड नाउ इन द प्रीवियस स्लाइड। नाउ कम्स द concrete operational stage which is between 7 years and puberty। ठीक है, as the child moves into the stage typically after year of preschool। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, तो उसमें इम्प्रूवेबिलिटी हो जाती है रीजनिंग की। ठीक है, बट he can use his limited number of logical processes to handle the objects near his surroundings। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास अ, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज सीरिएशन। ठीक है, एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स in an order according to different size, shape, or any other characteristic for given different shaded objects, and they have different color gradients. So इसमें he can now understand different objects, different colors also। ठीक है, now coming to the transient, its ability to recognize logical relationships among elements in serial order. Like, for example, A is taller than B, B is taller than C, then A must be taller than C. Now in this age they can understand. They can classify objects according to appearance, size, shape, other characteristics। तो क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप हो रहा है इसके अंदर। फिर डी सेंटरिंग भी हो रही है, where the child takes into account into multiple aspects of the problem to solve। ठीक है, वो रिवर्सिबिलिटी कर पा रहे हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, रिवर्सिबिलिटी थी, मतलब 4 + 2 + 4 हो रहा है, मतलब 4 - 2 नहीं पता उसमें। बट इन दिस स्टेज रिवर्सिबिलिटी, चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट नंबर और ऑब्जेक्ट्स ही कैन चेंज एंड रिटर्न देम टू द ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, तो 4 + 4 अगर 8 है तो 8 - 4 विल बी 4, उसको पता चल जाएगा। देन इज एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, his ability to view things from other perspective will come। ठीक है, now what is the dental application in this stage, like giving concrete instrumentation instructions like this is a retainer, brush like this, wear it at night, remove it in the morning,
ठीक है, तो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसको समझ आ रहा है, उसको ब्रशिंग का डेमोस्ट्रेशन अगर हम डेंटल क्लिनिक में देंगे तो वो घर जाके उसको रेप्लिकेट कर पाएगा। ठीक है, अगर हम उसे समझाएंगे कि ये एक रिटेनर है, ठीक है, ये उसके लिए बेटर है, ठीक है, तो और हमें उसे बताना है कि वो नाइट में पहनेगा, ठीक है, और मॉर्निंग में उतार देगा, तो ही कैन टेक द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल एंड फॉलो इट इफ ही वांट्स टू फॉलो इट। ठीक है, और अगर हमें कुछ ट्रीटमेंट करना है तो हम उसको मिरर दिखा सकते हैं, सक्शन पकड़ने के लिए दे सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। From 7 years to puberty. Now is formal operating stage, which is adolescence till adulthood. ठीक है, child will start understanding logic and hypothetical concepts. ठीक है, at this stage, child thought process have become similar to that of adult, and child is capable of understanding concepts like health diseases, prevention. ठीक है, तो he wants to be treated in this stage like adults. ठीक है, self conscious feels that he is being able constantly observed by others. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि उसको एक थोड़ी इनसिक्योरिटी आ सकती है, या उसको लग रहा है कि सब उसको देख रहे हैं, तो उसे एक मेच्योर एडल्ट की तरह फॉलो लाइफस्टाइल फॉलो करना है। ठीक है, और जो प्रॉब्लम है उसको भी टैकल करना है। चाइल्ड थॉट प्रोसेस हैव बिकम सिमिलर टू दैट ऑफ अडल्ट, एंड चाइल्ड इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स लाइक हेल्थ डिजीज एंड प्रिवेंशन, व्हिच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, तो इसकी डेंटल एप्लीकेशन क्या है? Patient may protest for wearing and removable appliances because other will think that it is not looking good. ठीक है, तो डेंटिस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? नॉट टू डिनाई हिज पॉइंट ऑफ व्यू बट आस्क हिम टू गिव इट ट्राई फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो हम उसकी जो हम उसे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, हम उसकी अप्रोच या उसके व्यू पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा स्टेज में, बिकॉज ही हैज बिकम अडल्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू मेरिट्स एंड demerits ऑफ cognitive theory. First merited, it is present a positive view and emphasizes on conscious thinking, and it emphasizes individual activity and construction of the understanding of the activities. And its demerits are: it underestimates child ability, overestimates the age difference in thinking, not enough credit is given to the unconscious thoughts and the role of social environment. Okay, now comes the classical conditioning theory. It was given by Ivan Pavlov. Okay, and he has done a very famous study. ठीक है, which I'll discuss, and I know if you have मतलब you have read and you have seen this diagram in your books. ठीक है, it is a very classic theory. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक्चुअली फर्स्ट कंडीशनिंग हो रही है। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है? कंडीशनिंग हो रही है, which occurs when a neutral stimulus is paired with an existing conditioned stimulus which becomes associated with it and gains the power to elect the same conditioned response. ठीक है, इसको समझाने के लिए बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है डॉग हंगर का। ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रही है कि जब भी डॉग फूड को देखता है, ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्स हो रहा है? सलाइवेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है? हमने उसको बेल बजाई, ठीक है, उसका कोई सलाइवेशन नहीं आया। ठीक है, तो ये उसका न्यूट्रल रिस्पॉन्स था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फूड के साथ बेल बजाई, तो उसने दोनों को रिलेट कर दिया और उसने सलाइवेट किया। ठीक है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। तो अब जब भी बेल बजेगी तो वो सलाइवेट करेगा, तो ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गया उसका। ठीक है, सो now it has four principles. First is acquisition, then generalization, then discrimination, and fourth is extension. ठीक है, in acquisition it is learning a new response from the environment by the conditions. Then generalization, if the association between a condition and an unconditioned stimulus is strengthened or reinforced every time they occur together, like explained in last example. Then discrimination, it is opposite of generalization. Example: if child is explored to a clinic setting that are different from those that he have associated with painful experience, he can differentiate between the two settings, and generalized response will not be seen. He will not generalize everyone with a white coat
to a doctor and a bad experience of vaccination. Then extension, if the association between condition and continuous stimulus is not reinforced, then the association between them becomes less strong and eventually disappears. तो क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी का जो भी मैं एग्जांपल व्हाइट कोट वाला बता रही थी, उसमें क्या हुआ, जो व्हाइट कोट है वो न्यूट्रल स्टिमुलस हुआ, ठीक है, उससे उसके दिमाग में आया पेन ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से वो रोता है, उसका रिस्पॉन्स रोना आता है, डरना आता है। बट अगर वो डेंटिस्ट के पास आता है, उसकी दूसरी विजिट होती है, ठीक है, पर उसको डिफरेंट सेटिंग मिलती है, ठीक है, पर पहले तो वो पेन ऑफ इंजेक्शन उसके दिमाग में आएगा, बट इफ वी चेंज द सेटिंग्स, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया व्हाइट कोट का एग्जाम्पल, कि उसने पहले तो व्हाइट कोट को पेन ऑफ इंजेक्शन से किया, ठीक है, बट अगर हम उसे डेंटल क्लिनिक में लाएं और सिर्फ उसको चेकअप करें, ठीक है, और उसको कोई पेन ऑफ इंजेक्शन ना आए, ठीक है, तो फिर उसके लिए वो उसके बाद की विजिट्स होंगी वो उसके लिए हैप्पी या प्लेफुल हो जाएंगी। So, classical condition can be applied for developing a good habit, elimination of conditioned fears, elimination of the emotional fears, breaking of habit, to install a positive attitude in child, and teaching alphabets. These are the uses of the this theory. Now coming to the merit and demerits. First merit, it is simple to understand and applicable on children in the dental clinic. Demerit is it is not uh, create uh, create new behaviors. It only connects a natural occurring response to a stimulus and deals with that response. There can be a lot of variables affecting this theory. ठीक है, it triggers the development of phobias in human. So these are the demons of the theory. Now coming to the operant conditioning theory given by B.F. Skinner. This is the most complex uh, he has explained in the most complex human behaviors by operant conditioning theory. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि consequences of behavior is in itself by a stimulus then that can affect the future behavior. The basic principle of operant conditioning is that it is consequence of behavior itself, which I have written the first time. Consequence of behavior in itself, स्टिमुलस दैट कैन अफेक्ट द फ्यूचर बिहेवियर, जो उसका फ्यूचर बिहेवियर है वो एक स्टिमुलस चेंज कर सकता है, ठीक है। अब इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ओमिशन और टाइम आउट एंड पनिशमेंट, विच आई विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। If a pleasant consequence follows a response, the response have been a positive reinforced and behavior that has uh, uh, led to its success. For example, a child is given rewards such as toy after behaving well during his first visit. It is positive reinforcement. ठीक है, तो नेगेटिव reinforcement क्या हुआ, withdrawal of any unpleasant stimulus after exposure, like child who visits a dental experience, ठीक है, वो tantrums थ्रो कर रहा है, ठीक है, और वो escape होना चाह रहा है, ठीक है, तो हम उसमें एक नेगेटिव चीज reinforce करेंगे, ठीक है, ताकि वो ऐसी चीज ना करे, कुछ हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कर लेंगे, ठीक है, उसे कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के बाद बता देंगे कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो टैंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं क्लिनिक में, बट अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो यू कैन बी लाइक दिस कैन बी एडवांटेज फॉर द डेंटिस्ट, ठीक है। टेकिंग समथिंग विच ही लाइक्स कम्स अंडर नेगेटिव reinforcement. Now coming omission or timeout. It involves the removal of pleasant stimulus after a particular response. Like if child who throws temper has his favorite toy, ठीक है, एंड वी हैव टोल्ड कि भाई तुम्हारा फेवरेट टॉय तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक तुम अच्छे बनोगे, तो उसके पास वो टॉय है तब तक, बट जैसे ही उसने टेंट्रम शो करने शुरू किए हमने वो टॉय ले लिया, तो ये ओमिशन या टाइम आउट हो गया, ठीक है। अब है पनिशमेंट, ठीक है, कि हम उसे कुछ जैसे कुछ अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वॉइस कंट्रोल, ठीक है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा, ठीक है, हम उस पे अपनी वॉइस लाउड करके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पनिशमेंट हो गई,
ठीक है, जिससे उसकी अटेंशन दो थोड़ी देर हमारे हमारे पास हम गेन कर लेते हैं, फिर हम नॉर्मली जैसे काम कर रहे थे हम वैसे शुरू कर सकते हैं काम। ठीक है, तो ये पनिशमेंट हो गई। अब क्या इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स रहा है? इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन चिल्ड्रन हु हैव difficult to manage and useful in installation of lifelong positive behavior in child patients, but demerits fails to take account the role of inherent and cognitive factors, ठीक है, of the humans। ठीक है, these theory deals with strictly with distinct behavior, good or bad, like we have पॉजिटिव एंड नेगेटिव reinforcement। ठीक है, या तो बहुत अच्छी चीज या तो बुरी चीज। ठीक है, कोई इसका बीच का हमारे पास वो नहीं है, तो इसके डीमेरिट है। नाउ इज सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बेंडूरा विच इज गिवन इन 1963। So, in this theory believes in largely motivating by social needs. ठीक है, child who carefully observes the model will acquire a symbolic representation of model behavior, which are stored in memory and retrieved at a later stage when he has to use that memories. ठीक है, these symbolic representation may be images of the model's action or verbal labels with verbal representations or particle important to retain। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग इट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब फर्स्ट वी सी दिस इन दिस मॉडलिंग, लर्निंग बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड दे एंड देयर बिहेवियर थिंग्स। तो मॉडलिंग हैज ऑल्सो फोर प्रोसेसेस। ठीक है, फर्स्ट इज अटेंशन, रिटेंशन, motronic reproduction, and motivation, which led to observational. In attention, a child cannot learn by observation if the child does not attend the essential feature of model behaviors. Simple in exposing the child to the model does not assure his attention। ठीक है, तो factors related to gaining his attention involves relevance of his model behavior to that of observing child। This means that observer must be able to associate and identify with the role। ठीक है, तो ये हो गया अटेंशन। तो इस बेसिकली इसमें है कि वो अगर अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है, तो ही वो ऑब्जर्वेशन सीखेगा, नहीं तो वो नहीं सीखेगा। ठीक है, इफ ही सीज ओल्डर सिबलिंग को रिवॉर्ड मिल रहा है, तो भी वो यंगर चाइल्ड भी वो सेम चीज करेगा वो रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, तो ये उसका अटेंशन प्रोसेस हुआ। फिर रिटेंशन, एबिलिटी टू रिटेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर इन द मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि वो सेम रिप्रोड्यूस कर रहा है मॉडल बिहेवियर को। ठीक है, कोई अगर उसको गाइड कर रहा है या उसकी मेमोरी में वो चीज है पहले से, ठीक है, वो उसको कोड करता है और एक सिंबॉलिक फॉर्म में कर देता है। ठीक है, ये हो गया रिटेंशन। ठीक है, फिर मोटोनिक रिप्रोडक्शन, इसमें क्या, एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्शन वी ऑब्जर्व, जो हमने देखा वो हमने कर दिया, विच इज मोटोनिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो स्किल्स जो स्किल्स उसने सीखी, ठीक है, उसको अगर वो सही कर रहा है, ठीक है, तो ये मोटोनिक रिप्रोडक्शन हो गया। फिर है मोटिवेशन, ठीक है, एंड रीइंफोर्समेंट, कि अगर उसको वही चीज फिर से दिखती है और वो वही से विटनेस करता है फिर से वो चीज को, ठीक है, तो वो उसको ढंग से करेगा, उसमें कोई फेलियर नहीं होगा और उसकी चीज में वो दिमाग में रेलेवेंट रहेगी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये चारों चीज है ऑब्जर्वेशन में हेल्प करती है। नाउ इज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, a person self-regulates his behavior according to his own cognitive ability। Example, mother approval or disapproval is strong reinforcement for the child। ठीक है, किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ का अप्रूवल फॉर सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सेल्फ रेगुलेशन में आएगा। There merits and demerits of this theory. First, it provides more explanatory concepts. It encompasses a broader range. And demerits are it does not take into account physical and mental challenges. All the behavior are not explained. It does not explain behavior differences. ठीक है, it does not take account punishments and reinforcement। It does not overemphasizes on the role of the environment। These are the merits and demerits of this study। Now comes the hierarchy of needs or the self-actualization
which was given by Maslow in 1943. ठीक है, it is a theory of human motivation. So this has basically four levels. Level one, which is psychological needs. Level two, safety needs. Level three, love and belonging needs. Level four, esteem needs. And level five, self actualization needs. ठीक है, तो इसने इसने क्या किया, इसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी पे काम किया। ठीक है, इसने जो मैंने स्टेजेस बताई है उनको इसने अरेंज किया कि सबसे ज्यादा कौन सबसे ज्यादा एक इंसान को क्या चाहिए, उसकी बेसिक नीड्स क्या है, और फिर लास्ट में उसकी सबसे कम की नीड्स क्या है। ठीक है, उसने एक हायरार्की में इसको कन्वर्ट कर दिया सिक्स लेवल्स में। तो ये उसने बताया। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, लेवल में साइकोलॉजिकल नीड्स, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स विच इज बेसिक नीड्स सच एज फूड, वाटर, एयर, स्लीप। ठीक है, वो कब जो वो सेंटेंस तुमने मूवी में सुना होगा ना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ रहा है। ठीक है, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो क्या होगा, वो सिक फील करेगा, वो इरिटेटेड फील करेगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, तो बेसिक थिंग्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, ये सब बेसिक नीड है कि ह्यूमन की, उसको जीने के लिए जो चाहिए। ठीक है, तो लेवल वन में आ गई। लेवल टू में सेफ्टी नीड्स है, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज नेसेसरी। Child requires more psychological safety than adults, particularly in terms of home, family security. ठीक है, तो इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ जाती है, एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देन अडल्ट्स। नाउ कम्स टू लेवल थ्री, लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, उसके बाद जब घर भर आ गया, सिक्योरिटी हो गई, खाना वाना को टाइम पे मिल रहा है, तो उसको क्या चाहिए, अब प्यार, लव एंड बिलोंगिंगनेस ऑफ द नीड्स। सोशल नीड्स इंक्लूड अफेक्शन, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी, इंक्लूजन इन इंटीग्रेटेड ग्रुप्स। ही रिक्वायर्स लव एंड बिलोंगिंगनेस फ्रॉम लव्ड वंस इंक्लूडिंग पेरेंट्स, पीयर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसको प्यार मिल गया तो उसको क्या चाहिए, उसको स्टीम नीड्स चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी। So self-respect, self-esteem are essential for human needs, including competence, achievements, success, openness, independence, desires for recognition, appreciation for achievements. ठीक है, तो ये आ गया esteem needs में। And level five is self-actualization. When all these stages are fulfilled, then comes the self-actualization stage. It is a यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंच पाते self-actualization पे। ठीक है, एंड इसमें and Maslow has described it is as person finding their passion or mission. ठीक है, ये हो गई hierarchy of needs की थ्योरी। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स इट्स बेस्ड ऑन टोटलिटी डेवलपमेंट ऑफ द personality, and it is applied to the understanding of the parental attitude, and that can indirectly affect the child's behavior in dental office. And its demerits are difficult and impractical to apply in the dental children in the clinic setup. ठीक है, तो बेसिकली हमने इन थ्योरीज से क्या सीखा। Firstly, none of these theories are completely correct or incorrect. These are just proposals. And this is why this is important to understand, because we can guide child's behavior in a clinic that way, according to his or her age. ठीक है, we can work more effectively and effectively in our dental clinic. We can understand the development of the child, his personality and his psychological needs to practice pediatric dentistry, because behavior management is the most important thing in the pediatric dentistry, and how we manage the child is the basic thing before treating them. So these were the theories, and these are very important theories which I have discussed right now, and these are given by very scientific renowned psychologists. So I hope that you understand it fully. Thank you so much.